صلی علی حبیبہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم۔ نبی محترم اور آل نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ محترم بزرگوں اور محترم سامعین و حاضرین، اس محترم چینل پہ حضرت مولانا اسلم صاحب قبلہ کی قد و کاوش اور ان کی فرمائش پر میں اس عدیم الفرصتی کے باوجود حاضر ہوں، اور بھی سارے پروگرامات آگے پیچھے سب لگے ہوئے ہیں اور لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، مگر تھوڑی دیر میں اپنا فریضہ سمجھتا ہوں کہ جس مبارک ہستی کے نام سے اس پروگرام کو معنون و منسوخ کیا گیا ہے، وہ کوئی معمولی ہستی نہیں ہے جس کے انتقال پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں اشک بار ہوں، تو جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق فرامہ کے دعوے دار لوگ ہیں، ان کی آنکھوں کے آنسو تو بدرجہ طور پر بہنے چاہیے ان حضرات کے غم میں، جن حضرات کے غم میں نہ صرف یہ کہ اللہ کے رسول روئے بلکہ اس پورے سال ہی کو عام الحزن قرار دے دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دو شخصیتیں ایسی ہیں جن سے اسلام کی پرورش ہوئی ہے۔ سبحان ایک اللہ، شخصیت ہے ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ صلوات اللہ علیہا کی، سلام اللہ علیہا کی، اور دوسری شخصیت ہے حضرت خواجہ ابو طالب کی۔ یہ دونوں شخصیات سبحان اللہ، اسلام کی جڑ بنیاد میں اور اسلام کے شجر طیبہ کو برگ و بار لانے کے سلسلے میں ان دونوں شخصیتوں نے اسلامی چمن کے مالی کا کام کیا ہے، اور واہ واہ واہ، چمن میں مالی پانی ڈال کر اسے ہرا بھرا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ان دونوں محترم شخصیات نے اپنا خون جگر ڈال کر اسلامی سبحان چمن اللہ، کو سدا سبحان اللہ بہار بنا دیا ہے۔ بھائی، بہت اور ان عمدہ، دونوں بہت عمدہ، واہ واہ۔ اور جہاں تک عنوان کا سوال ہے اور خواجہ ابو طالب کی ذات کا سوال ہے، تو اب میں کیا بتاؤں آپ سے، اس ذات پہ سوالیہ نشان لگانے سے پہلے 1000 مرتبہ ہمیں سوچنا ہوگا، اس لیے کہ یہ وہ محترم ذات ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آغوش میں پال کر جوان کر رہی ہے۔ واہ اور واہ، میں صرف اتنا ہی نہیں کہوں گا کہ انہوں نے محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی ہے، سچی بات یہ ہے کہ انہوں نے منصب رسالت کی حفاظت کی ہے، بہت منصب عمدہ، واہ نبوت کی واہ واہ واہ، حفاظت کی ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہر قدم پہ حفاظت کی ہے، اس لیے کہ وہ بشریت محمدی جو 40 سالہ زندگی پر محیط جلوہ گر ہے، دنیا نہیں دیکھ رہی تھی کہ اس بشریت محمدی کے اندر جو جلوہ گری رسالت کی چھپی ہوئی ہے اور جس سے پروردگار کو عالمگیر کام لینا ہے اور اپنا پیغام دینا ہے، ایسے پیغمبر پر جب بھی وقت آیا تو ڈھال بن کر جو ذات کھڑی ہوئی تھی، اسی ذات کا نام جناب ابو طالب ہے۔ واہ واہ، دوسری بات، آپ ذرا کیریکٹر اور کردار دیکھیے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم در یتیم ہیں۔ پیدا ہونے سے پہلے والد مکرم کا وصال، 6 سال کی عمر والدہ ماجدہ جنت الفردوس کی حقدار، اور 8 سال کی عمر میں دادا جیسی عظیم الشان شفقت سے بھری ہوئی ذات بھی دنیا سے اٹھ جاتی ہے۔ ایسی صورت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش اور پرداخت کے لیے
जिस शख्सियत का इंतखाब जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया था वो कोई और शख्सियत नहीं थी, वो जनाब अबू तालिब की शख्सियत थी। और जनाब अबू तालिब के कफालत में जब मुस्तफ़ा लाए गए तो जनाब अबू तालिब ने इस तरह से चचा का हक नहीं अदा किया था, उन्होंने बाप का हक अदा किया था, उन्होंने मुरब्बी का हक अदा किया था। उन्होंने अपनी औलादों से ज्यादा मुस्तफ़ा को के नाज उठाए थे। उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसरत में या इशरत में कभी अकेला नहीं छोड़ा था। उन्होंने अपने बेटे को उनके दामने आतिफत में रख कर बाबुल इल्म बनने का रास्ता पैदा कर दिया था। नबूवत अपने शबाब पर थी और ऐलान कर रही थी कि मैं मदीनतुल इल्म हूं और अली उसका दरवाजा है। अब जरा इन दोनों को आप मुलाहजा फरमाइए, दोनों परवरिश पा रहे हैं जनाब अबू तालिब की रिदाए रहमत में, दोनों परवरिश पा रहे हैं जनाब अबू तालिब की रिदाए बरकत व आतिफत में। और उसके बाद सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत मौला अली मुश्किल कुशा रज़ियल्लाहु ताला को अपने दामन रहमत में ले लिया। मगर आप जरा देखिए कि जनाब अबू तालिब की हुजूर से मोहब्बत कैसी थी कि जब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहद बकरियों की रखवाली के लिए बाहर तशरीफ ले जाया करते थे, खाने का जब वक्त हो जाता था, हजरत अबू तालिब बहुत ज्यादा कसीरुल अयाल थे, खाने पीने के सामान कम थे, खाने वाले ज्यादा थे। और जब वो दस्तरखान लगाते थे तो अपने बच्चों से कहते थे कि बेटा थोड़ा सा रुक जाओ, मेरे मोहम्मद को वापस आ जाने दो, और मेरे मोहम्मद जब दस्तरखान पे बैठे तब खाना तनाउल फरमाओ। रावियों ने ये लिखा है कि हजरत अबू तालिब का अकीदा ये था कि हमारे पास रोटियां ज्यादा होती थी, खाने वाले कम होते थे, मगर इसके बावजूद खाने वाले कम होते थे, रोटी ज्यादा होती थी, इसके बावजूद आलम यह होता था कि लोग भूखे रह जाते थे। मगर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दस्तरखान पे बैठते थे, खाने वाले ज्यादा होते थे, रोटी कम होती थी, पेट भर जाया करते थे, रोटी बच जाया करती थी। ये किसी और का बयान नहीं है, रसूलुल्लाह की जात की बरकतों का इजहार जुबान अबू तालिब से हो रहा है। और फिर इस तरह से वो अजमत रिसालत का इजहार अपनी जुबान से जिंदगी भर करते रहे और हजरत अली से ये फरमाते रहे कि वही करना है तुम्हें जो मेरा मोहम्मद कर रहा है। कुफारो मुशरिकीन से ये फरमाते रहे कि मेरे मोहम्मद के अंदर भलाई के अलावा और क्या है, जो भलाई वो दे रहे हैं उसे कबूल कर लो, जो बातें कह रहे हैं उसे मान लो, वही सीधे रास्ते पे है, उन्हीं का रास्ता सीधा है। अल्लाह के हबीब दो जहां के तबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने चचा से इतनी मोहब्बत थी कि चचा के इंतकाल के बाद ही रसूलुल्लाह ने उसका नाम ही साल का आमुल हुज़्न रखा था, गम का साल रखा था, मातम का साल रखा था। और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाब अबू तालिब की गोद में इस तरह परवरिश पा रहे थे कि जिस वक्त सोशल बाइकाट हुआ है, या यूं कहिए आज की जुबान में कि एनआरसी लगाई गई है, शाब अबी तालिब में खानदान बनु हाशिम को सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मक्का के माहौल से मुनक़ता करके डाल दिया गया है। तो अब कुर्बान जाइए जनाब अबू तालिब के कि अपने भतीजे को बचाने के लिए, मैं फिर ये जुमला दोहराऊंगा कि भतीजा ही नहीं बचा रहे थे, वो नबूवत की जात को बचा रहे थे, वो रिसालत के महे खुर्शीद को बचा रहे थे। वो एक जगह बिस्तर पे सुला देते थे हुजूर को ताकि जमाना देखे कि अल्लाह का हबीब यहाँ सोया हुआ है। मगर जब अंधेरा होता था तो हुजूर को उठाकर दूसरे मकाम पर वो रख दिया करते थे और वहां अपने किसी बेटे को सुला देते थे कि खुदा ना खास्ता अगर कोई हमला हुआ तो मेरे मोहम्मद की जात पर कोई आंच ना आने पाए। उनकी जिंदगी का एक एक लम्हा इस बात का गवाह है कि उन्होंने सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस तरह परवरिश की है, इस तरह निगहबानी की है, इस तरह से हुजूर की गार्जियनशिप की है कि सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी नबूवत और अपने रिसालत के पैगाम को देने के लिए अपने पीछे जो सबसे बड़ी मादी ढाल पा रहे थे, उसी मादी ढाल का नाम था जनाब अबू तालिब। सुभान मालूम अल्लाह, नहीं सुभान। कब का मकान हुजूर का
किया गया होता, मालूम नहीं इससे पहले ही कत्ल की रात आ गई होती, शबे हिजरत तक का भी इंतजार नहीं होता। शबे हिजरत में कत्ल के लिए इसलिए वो लोग आमादा हुए कि अब अबू तालिब जैसी ढाल मौजूद नहीं थी। जब तक अबू तालिब जैसी ढाल मौजूद थी, उस वक्त तक किसी की हिम्मत नहीं थी कि मेरे मुस्तफा के साथ गुस्ताखी की राह से वो गुजरने वाला राही बन सकता। एक मेटा है से ख्वाजा अबू तालिब की मोहब्बत की ऐसी बैयन दलील है, जिस दलील के बाद मेरे ख्याल से न किसी दलील की जरूरत। सरकार दो आलम से कहा कि अल्लाह के सामने झुक जाओ और एक खुदा की इबादत करो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद वसल्लम। अर्ज ये कर रहा था, एक बात और सुन लीजिए कि कुफार मुशरिकीन ने जनाब अबू तालिब के पास आकर कहा कि साहब हम आपके भतीजे से बहुत तंग आ चुके हैं और हमारे माबूदान बातिल के खिलाफ वो बोलने से बाज नहीं आ रहे हैं। आप ऐसा कीजिए कि हम अरब का सबसे खूबसूरत बच्चा आपके हवाले कर देते हैं, आप उसको लेकर के अपना भतीजा बना लीजिए, परवरिश कर लीजिए और इन्हें कत्ल करने के लिए हमें दे दीजिए। क्या खूबसूरत जवाब दिया था ख्वाजा अबू तालिब ने कि क्या बात है, तुम्हारा बच्चा लेकर मैं पालूं और अपना बच्चा तुम्हें दे दूं ज़बह करने के लिए, तुम किससे बात कर रहे हो ना। मैं अपने मोहम्मद का साथ कभी जिंदगी के किसी लम्हे में नहीं छोड़ सकता और मैं अपने मोहम्मद की देखभाल के लिए उनकी ढाल हमेशा बना रहूंगा। खुदा भी गवाह है और खुदाई भी गवाह है कि उन्होंने जिंदगी भर ढाल बनने का काम किया और कोई ऐसा मौका नहीं रहा जिस मौके पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यास को आस में तब्दील नहीं कर दिया, बहुत जिस अच्छा है। वाह 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 वाह, गम को सुभान अल्लाह खुशी में तब्दील नहीं कर दिया, जिस मौके पे रसूलुल्लाह की परेशानी को आसानी में नहीं तब्दील कर दिया। परवरदिगार आलम मादी असबाब के जरिए तारीखी हैसियतों की निगहदाश्त फरमाया करता है। जनाब अबू तालिब को चुना था अल्लाह ताला ने मादी एतबार से रसूलुल्लाह की निगहदाश्त के लिए, रसूलुल्लाह की हिफाजत के लिए, रसूलुल्लाह के पैगाम को आगे बढ़ाने के लिए। ये जनाब अबू तालिब का वो तारीखी कारनामा है कि आज तारीख इस्लाम मुकम्मल ही नहीं होगी जब तक जनाब अबू तालिब की शफकत का वाकया न बयान किया जाए, उनकी मोहब्बत का वाकया न बयान किया जाए और उनकी कुर्बानियों को अगर पसे पुष्ट डाला जाए तो इस्लाम के साथ भी ये ज्यादती होगी, पैगंबर इस्लाम के साथ भी ये ज्यादती होगी, खुश अकीदा मुसलमानों के साथ भी ये ज्यादती होगी। उनके जैसा मोहसिन, मैं तो ये कहता हूं कि क़यामत तक उम्मत मुस्लिमा पर जिसका सबसे बड़ा एहसान है उसका नाम अबू तालिब है, जिसने मोहसिन इंसानियत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मादी एतबार से हर तरह हिफाजत फरमाते हुए अल्लाह के उस एहसान से इंसानियत को मुतारिफ करवाया जिस एहसान का नाम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। उनकी जात हर कदम पर मुसलमानों के लिए मिशल राह है। कुर्बानी अगर सीखनी है नजरियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तो उसके लिए भी आइडियल हैं जनाब अबू तालिब। अपने बाल बच्चों और अपने भतीजे से, अपनी औलाद से ज्यादा मोहब्बत करने का अगर नजरिया लेना है तो मिशले नूर हैं जनाब अबू तालिब। और अगर अपने सदाकत की आवाज की हिफाजत के लिए जान जोखों में डालने के लिए कोई आइडियल लेना है तो शाब अबी तालिब का वो ज़ईफ मुकद्दस इंसान मौजूद है जो जनाब अबू तालिब के नाम से तारीख इस्लामी में और तारीख इंसानियत में मुनफरिदुल मिसाल हयात का कारनामा लिए हुए खड़ा है। मैं किन किन एहसानात को उनके आपके सामने रखूं, उम्मत को उनकी जात से मुतारिफ होना चाहिए। हर कदम पर उन्होंने रसूल पाक की निगहदाश्त की। अब आइए सामने दो बातें आती हैं जो बड़े ही नाजुक तरीन मरहले से मैं इस वक्त गुजर रहा हूं। दो चीजें सामने आती हैं। हमारे शिया मकतबे फिक्र के पास तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता उनके ईमान अबू तालिब के मामले में।
मगर सुन्नी मकतब फिक्र में 2 राय पाई जाती है। मैं उस राय में ईमान अबू तालिब का कायल हूं, इसलिए कि अगर ये रवायत बयान की जाती है कि जनाब अबू तालिब से रसूल पाक फरमा रहे थे, चचा जिंदगी भर की मेहनतों का समरा आप आखिरत में लेकर के जाइए, एक मर्तबा ला इलाहा इल्लल्लाह कह दीजिए। तो रवायतें कहती हैं कि उन्होंने कहा कि नहीं, मैं अपने बाप के दीन पर मरता हूं। एक रवायत यह है जिस रवायत की वजह से लोग तरह तरह की बातें करते हैं, मगर दूसरी रवायत जनाब अब्दुल्ला इब्न अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु से, जो रसूल पाक के चचा हैं, वो कहते हैं कि या रसूल अल्लाह, मैंने अपने भाई का जब दम उखड़ रहा था और आखिरी सांसें थी, आलमे बरज़ख की तरफ वो मुंतकिल हो रहे थे, तो मैंने जनाब अबू तालिब के लबों को हिलते हुए देखा था, और मैंने जब कान लगाया तो वो ला इलाहा इल्लल्लाह कह रहे थे, जब मैंने कान लगाया तो वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कह रहे थे। कहना ये चाहता हूं कि एक तरफ एक शख्सियत इंसानी एतबार से इंसानियत की मेराज साबित हुई है, खिदमत के एतबार से इंसानियत की मेराज साबित हुई है, रसूल पाक पे शफकत और रहमत के एतबार से इंसानियत की मेराज साबित हुई है। एक शख्सियत खुद फरामोशी का पैकर बनकर महबूब खुदा की हिफाजत के लिए ढाल बनकर दुनिया के सामने खड़ी। तो अगर 2 तरह की रिवायतें भी आ रही हैं, तो हम ऐसी रवायत की तरफ क्यों चलें जो रिवायत इन तमाम शफकतों पे पानी फेर रही है? हम ऐसी रवायत की तरफ क्यों ना चलें जिस रवायत की तरफ चलने के बाद एक सहाबी के कौल से भी हमें सनद उनके ईमान की मिल जाती है, और उनकी शफकत व मोहब्बत, उनकी मुरव्वत और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जिंदगी भर का एहसान और जिंदगी भर तक रसूल पाक से बेपनाह मोहब्बत खुद रफ्तगी के आलम में जिस जात ने की हो, उस जात के बारे में कम से कम मेरे जैसा इंसान तो लब कुशाई की जुर्रत नहीं कर सकता। और परवरदिगार आलम जिस हबीब को आखिरी तबीब इंसानियत का बनाकर भेज रहा है, उस तबीब हाजिक की हिफाजत मादी आलम असबाब में जिस जात से करवा रहा है, वो जात कोई और जात नहीं है, वो जनाब की जात है। वो मुहाफिज इस्लाम भी साबित हुए। इस तरह वो पुष्पनाहे जाते रसालत में आप भी साबित हुए। इस तरह से उन्होंने दुनिया के सामने इस्लाम ने जो एहसान की तारीफ की है, जो इंसाफ की तारीफ की है, जो साहिबाने तारीफ की तारीफ की है, वो कौन सी खूबी है जो हजरत अबू तालिब के पास मौजूद नहीं है? और इन्हीं तमाम खूबियों की बुनियाद पर अल्लाह के हबीब उनके गम में अश्क हाय गम बहाते रहे, और पूरे साल ही का नाम रसूलुल्लाह ने आमुल हुज़्न रख दिया। एक अपनी बीवी की दौलत के जरिए उन्होंने इस्लाम जैसी अजीमुशान दौलत इंसानियत को दिया, दूसरे अपने चचा की शफकत, मेहनत, मुशक्कत, सब्र और मसाइब वाली दौलत के जरिए उम्मत को मसाइब में सब्र करने का सलीका सिखलाया। मुख्तसरन ये हैं वो मेरे महसूसात जो मैं ख्वाजा अबू तालिब के लिए आपके सामने रख रहा हूं। परवरदिगार आलम से दुआ है कि उनका जो ये कैरेक्टर है, ये कैरेक्टर मुसलमानों में अमली तौर पर नाफिज कर दे। अगर ये कैरेक्टर या अगर ये अमल मुसलमानों के अंदर आता है, तो बड़ी से बड़ी जुल्मते शब की सियाही का भी पर्दा चाक कर नमूदे शहर की ताबानियों की बात की जा सकती है। समझता हूं कि मैं यकीनन मौलाना असलम साहब, मैं आप यकीन मानिए एक लम्हे की मुझे फुर्सत नहीं मिली थी, बिल्कुल बरजस्ता जो कुछ अल्लाह तौफीक दे रहा है वो बोल रहा हूं। सीधी बात यह है कि हजरत अबू तालिब का एहसान उम्मत क़यामत तक नहीं उतार सकती, और अबू तालिब के बारे में एक जुमला भी बेहूदगी का अगर कोई बेहुदा बोलता है तो इससे बड़ी बेहूदगी नहीं हो सकती। खुदा हाफिज।